بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹ، سبق نمبر 4 سیاہ روشنی. سیاہ روشنی اس سبق کی مصنفہ کون ہے؟ پروین شیر. پروین شیر. سیاہ روشنی اس سبق کی مصنفہ ہے پروین شیر. معنی و اشارات. طیارہ. طیارہ کسے کہتے ہیں؟ ہوائی جہاز. ہوائی جہاز کو طیارہ کہتے ہیں. طیارہ ہوائی جہاز. رن وے. ہوائی پٹی. ہوائی پٹی ایئرپورٹ پر جو سڑک ہوتی ہے جس پر طیارہ پہلے آہستہ آہستہ دوڑتا ہے، اپنی رفتار بڑھاتا ہے، تیز ہوتا جاتا ہے، اپنی رفتار کو تیز کرتا جاتا ہے اور پھر ایک اڑان بھرتا ہے اور فضا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے. عبرتناک یعنی عبرتناک، سبق آموز. سبق آموز. آپ بولیے بیٹا جمع غفیر. سہیب آپ بولیے جمع غفیر مینس، جمع غفیر کے معنی آپ بولیے بیٹا. ہجوم. ہجوم. جمع غفیر یعنی ہجوم. سبق کا بغور مطالعہ کیجیے اور ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے. سبق سیاہ روشنی کا مطالعہ کر کے ذیل کا شجری خاکہ مکمل کیجیے. سیاہ روشنی. مصنفہ آپ بولیے بیٹا مصنفہ. پروین شیر. پروین شیر. شوہر. وارث. وارث. بیٹا فراز. فراز. صنف ادب. سفر نامہ. سفر نامہ. ملک. جنوبی افریقہ. جنوبی افریقہ. شہر. سویٹو. سویٹو. نیچے دیے ہوئے واقعات کو صحیح ترتیب میں لکھیے. یہ جو ایکٹیویٹی ہے، یہ جو سرگرمی ہے، یہ کس طرح حل کرنا ہے بتائیے آپ مجھے. ترتیب میں لکھنے کا ہے، نیچے دیے ہوئے واقعات کو ترتیب میں لکھنا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ان واقعات کو سبق میں جتنے واقعات یہاں دیے ہوئے ہیں، 6 واقعات دیے ہوئے ہیں، تو 6 کے 6 پورے سبق میں آپ 6 کے 6 تلاش کر لیجئے. یہ بہت صحیح طریقہ ہے. پہلے سبق میں پورے 6 کے 6 واقعات تلاش کر لیجئے اور پھر اوپر سے سیریلی سلسلے وار ان کو نمبر دے دیجئے. اس طرح آپ بالکل صحیح طریقے سے اور آسانی کے ساتھ واقعات کو ترتیب دے سکیں گے. پورے 6 کے 6 واقعات کو تلاش کر لیجئے اور اوپر سے سلسلے وار تسلسل کے ساتھ ان کو نمبر دے دیجئے. بس یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. اس کے بعد میں سرگرمی نمبر 3، خط کشیدہ الفاظ کی جگہ سبق میں آئے ہوئے لفظ استعمال کر کے جملے دوبارہ لکھیے. جملوں میں کچھ الفاظ خط کشیدہ ہیں، ان کی جگہ آپ کو دوسرا لفظ ان الفاظ کے ہم معنی الفاظ آپ کو استعمال کر کے جملے دوبارہ لکھنا ہے. نمبر 1، دل کی عجیب حالت تھی جس کا کوئی نام نہ تھا. اس میں حالت خط کشیدہ لفظ ہے. اس کے جگہ کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ کیفیت. کیفیت. حالت کی جگہ کیفیت. دوسرا جملہ ہے، پروین کے خیالات سمندر میں ڈبکیاں لگا رہے تھے. ڈبکیاں خط کشیدہ لفظ ہے. اس کی جگہ آپ بولے بیٹا سہیب، اس کی جگہ کون سا لفظ استعمال کیا جائے گا؟ خیالات. آپ بولے بیٹا غوطے. ڈبکیاں مینس غوطے. غوطے. نمبر 3، ایک دبلا پتلا سا آدمی ایک جھنڈی لہراتا نظر آیا. دبلا پتلا سا، اس کی جگہ آپ کو دوسرے لفظ کا استعمال کرنا ہے.
बोलिए। शख्सियत, मुनहनी, मुनहुनी। नंबर 4, न्यूयॉर्क या शिकागो में काले लोगों का खौफ दिल व दिमाग पर छाया हुआ रहता है। छाया हुआ, इस लफ्ज की, इन अल्फाज की जगह कौन सा अल्फाज इस्तेमाल किया जाएगा? कौन से अल्फाज, कौन सा लफ्ज? मुसल्लत, मुसल्लत। छाया हुआ मीन्स मुसल्लस, मुसल्लत। नंबर 5, एक बाथरूम आंगन में था। आंगन के हम्मानी लफ्ज मैदान, सहन। उसके बाद देखिए सरगर्मी नंबर 4, जुनूबी अफ्रीका से मुतालिक मुसन्निफा के ख्यालात का रवां खाका चौकोनों में सिर्फ एक लफ्ज लिखकर मुकम्मल कीजिए। आज जमीन के उस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी जिसे तस्वीरों में देखा था। क्या आएंगे बेटा है पहले चौकोन में? तस्वीरों में देखा था। दूसरे में किताबों में पढ़ी थी। उसके बाद इबरतनाक माजी था, इंसानियत सिसक रही थी, बर्बरियत मुस्कुरा रही थी। सरगर्मी नंबर 5, बगौर समात फरमाइए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। दिए हुए अल्फाज की जमा या वाहिद लिखिए। जमा या वाहिद लिखना है आपको। कैफियत जमा है कि वाहिद है सोएब बेटा? कैफियत वाहिद है। इसकी जमा कैफियात। ख्यालात क्या है बेटा? जमा है कि वाहिद है? जमा है। इसका वाहिद फिर ख्याल। शख्सियत जमा है कि वाहिद है? जमा। शख्सियत वाहिद है। इसकी जमा शख्सियात। जवाबात जमा है कि वाहिद? जमा। इसका वाहिद जवाब। मकानात जमा है या वाहिद? जमा है। इसका वाहिद मकान। हिसाब जमा है या वाहिद? वाहिद। इसकी जमा हिसाबात। वेरी गुड। तैयारे के उड़ान भरने और फिजा से जमीन के मंजर को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। बोलिए बेटा। तैयारा उड़ान भरने से पहले जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसके लहू, ये डियर स्टूडेंट्स, हवाई जहाज सबसे पहले, तैयारा यानी हवाई जहाज रनवे पर पहले धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाता है और बाद में एक जस्त फिजा में भरकर उड़ना शुरू कर देता है। ये तरीका है हवाई जहाज का। उसके लोहे के पंख फैले हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी रफ्तार तेज हो रही थी। उसके बाद तवील रनवे से एक लंबी जस्त लगाकर तैयारा फिजा में परवाज करने लगा। जैसे जैसे तैयारा बुलंद हो रहा था, जमीन दूर और छोटी होती जा रही थी, यहाँ तक कि जमीन एक जर्रे की मानिंद दिखाई देने लगी। जब तैयारा बादलों में मजीद बुलंद हुआ तो जमीन का दिखाई देना बंद हो गया। उसके बाद सरगर्मी नंबर 7, बगौर समात फरमाइए। तैयारा नीचे उतरते वक्त जमीनी मंजर में, आप बोलिए ना बेटे सवाल का जवाब। सरगर्मी नंबर 6 का, तैयारे की उड़ान भरने और फिजा से जमीन के मंजर को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तैयारा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। बातदरीज उसकी रफ्तार में इजाफा होता गया और रनवे पर तेज दौड़ते हुए एक जस्त में फिजाओं में
परवास करने लगा और बुलंद में इजाफा होता गया। जू जू जमीन से दूरी पड़ती गई, जमीन जर्रे की मानिंद होती गई और एक वक्त वो आया कि जमीन लापता हो गई और तैयारा मुकम्मल तौर पर खलाओं की दुनिया में तैरने लगा। सरगर्मी नंबर 7, तैयारा नीचे उतरते वक्त जमीनी मंजर में जो तब्दीलियां महसूस होती हैं उन्हें बयान कीजिए। चलिए बेटा आप बोलिए बुलंद आवाज से। तैयारा नीचे उतर रहा था और जमीन करीब आ रही थी। गाड़ियों की लाइन जो बुलंदी से चींटियों की कतार नजर आ रही थी, अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाहिर हो रही थी। छोटी छोटी डब्बियां आलीशान इमारतों में तब्दील हो रही थी और फिर तैयारे जमीन के सपाट सीने पर दौड़ने लगा। बोलिए बेटा आप। तैयारा जब नीचे उतरने लगा तो जमीन करीब आती जा रही थी। जो अब तक लकीरों पर रेंगती हुई चूटियां मालूम हो रही थी वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में तब्दील हो रही थी। जो छोटी छोटी डिब्बियां दिखाई दे रही थी वह आलीशान इमारतों में तब्दील हो रही थी। जमीन फैलती जा रही थी। वेरी गुड। सरगर्मी नंबर 8, बुलंद आवाज से बोलिए। जवाब हमेशा बुलंद और साफ आवाज में पेश किया जाना चाहिए। सरगर्मी नंबर 8, बगौर समात फरमाइए। जुमला लोग मोल तोल कर रहे थे। खत कशीदा लफ्ज भाव ताव के लिए अवामी जुबान में इस्तेमाल होता है। इस तरह के कम अज कम 3 अल्फाज बनाइए। बोलिए। मोल तोल भाव ताव रख, मोल तोल भाव ताव रख रखाव चहल पहल मारपीट। बोलिए बेटा आप। अच्छा इसके बाद देखिए सरगर्मी नंबर 9, सोवेटो के गरीब खानदान के कमरों के बारे में बयान कीजिए। सयाहों ने सोवेटो में एक गरीब खानदान के खस्ता हाल 2 कमरों के मकान को भी देखा जिसके दरो दीवार बदहाल थे। रंग उड़ा हुआ था। कमजोर सुतूनों पर टीन की छत। सुतून यानी क्या बेटे? हमवार। सुतून यानी पिल्लर खंबे। टिकी हुई थी। एक बाथरूम सहन में थे जिसे पास पड़ोस। एक बाथरूम सहन में थे कि सहन में था? सहन में था। बुलंद आवाज से पढ़िए। जिसे पास पड़ोस के लोग भी इस्तेमाल करते थे। 2 कमरों के उस घर में 9 अफराद रह रहे थे। एक छोटे कमरे में बिस्तर और मेज के दरमियान चलने की जगह भी नहीं थी। छोटी सी खिड़की से मध्यम रोशनी अंदर आ रही थी। एक कमरे ज़ईफ बाप का था। नीम रोशन छोटा सा पुराना बिस्तर और छोटी सी रंग उड़ी हुई मेज थी। आप बोलिए बेटा। परवीन और सैयद सोवेटो के एक गरीब खानदान के मकान में गए थे। ये मकान 2 कमरों पर मुश्तमिल था। दोनों कमरे खस्ता हाल थे। दीवारों और दरवाजों का रंग उड़ चुका था। सुतून कमजोर हो चुके थे। छत टीन की थी। सहन में एक बाथरूम था जिसे उनके भी
पड़ोसी इस्तेमाल करते थे। एक छोटे कमरे में बिस्तर और मेज थी। कमरा इतना छोटा था कि बिस्तर और मेज रखने के बाद चलने की जगह नहीं थी। इस कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी जिससे बहुत कम रोशनी आ रही थी। एक कमरा बूढ़े बाप के लिए था, उसमें भी रोशनी कम थी। कमरे में छोटा सा पुराना बिस्तर था और छोटी सी एक बदरंग मेज थी। उस कमरे में एक टूटी फूटी कुर्सी थी। सरगर्मी नंबर 10, लड़की की बेजारी की वजह बयान कीजिए। बोलिए बेटा। सोवेटो की मफलूकुल हाल लोगों की बस्ती और उसमें रहने वाले लोगों का तर्ज जिंदगी सियाहों के तफरीह ज़ौक़ की तकमील के हिस्से थे। वो उस बस्ती के जिस मकान जाते सियाहों के तफरीह ज़ौक़ की तकमील के हिस्से थे। वो उस बस्ती के जिस मकान जाते मुशाहिदे के बाद उसमें रहने वालों को कुछ पैसे देते जिनसे घर के अफराद को खाना नसीब होता। मुताला कर रही नौ उम्र लड़की की उसी बात से बेजार मालूम हो रही थी और अपने रवैये से गुस्से का इजहार भी कर रही थी। वो खुददार तबीयत की हामिल थी। उसे अपने वजूद, अपने खानदान और अपने घर को नुमाइश का सामान बनाए जाने का शिद्दत से एहसास था। आप बोलिए बेटा। लड़की खुददार थी। उसे ये बात पसंद नहीं थी कि उसके वजूद, उसके खानदान और उसके घर को नुमाइश का सामान बनाया जाए। सयाहों के लिए उनकी खस्ता हाली और उनकी बेबसी तफरीह का जरिया बनाई गई थी। आमतौर पर सयाह हमेशा इस घर की गुर्बत को देखकर उन्हें कुछ रकम दे देते थे जिससे घर के अफराद का पेट भरता था। लड़की को यह सब नागवारा गुजरा था, इसलिए वो बेजार थी। सरगर्मी नंबर 11, सोवेटो से निकलते वक्त परवीन के लबों पर मुस्कुराहट थी और पलकें भीगी हुई थी। इस मुतजाद कैफियत की वजह बयान कीजिए। बोलिए बेटा। सयाहों ने सोवेटो में एक गरीब खानदान के खस्ताहाल 2 कमरों के मकान को देखा। उस तफरी नजारे के बाद निकलते हुए मकान में रहने वालों को कुछ पैसे दिए जो एक रस्म थी। लेकिन परवीन शेर उनके शोहर और बेटे को उन गरीबों में काफी दिए जो एक रस्म थी। लेकिन परवीन शेर उनके शोहर और बेटे को उन गरीबों में काफी दिलचस्पी थी। उनमें से एक 7 साला लड़का आता है, फराज से बातें करता है। परवीन कुछ चॉकलेट और खिलौने खरीदती है और उन्हें उन गरीब बच्चों में बांट देती है। फराज भी बच्चों को खिलौने और बिस्किट खरीद कर दे रहा था और उस तरह वो उन गरीब बच्चों में हीरो बन गया। फराज की नरमी, रहमदिली और इंसानियत देखकर परवीन शेर की आंखें नम हो गई और लबों पर मुस्कुराहट थी, यानी उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े थे। बच्चों, आप नहीं जानते, जब आपके वालिदैन या किसी के भी वालिदैन अपने बच्चे को जब नेक काम करते हुए, किसी की मदद करते हुए, किसी का ताउन करते हुए, किसी को सहारा देते हुए जब देखते हैं तो उनको बे इंतहा खुशी होती है। इतनी खुशी होती है कि खुशी से आंखों से
आंसू निकल पड़ते हैं। जैसा आप जब अच्छे नंबरात से कामयाब होकर जब घर पहुंचेंगे तो आपके वालिदैन को इस कदर खुशी होगी कि वो खुशी में उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। तो परवीन ने जब देखा कि उनका बेटा फराज बच्चों को खाने की चीजें खरीद कर दे रहा है और उनसे अच्छी नरमी के साथ में बातचीत कर रहा है, तो खुशी से उसकी ये नर्म मिजाजी को देखकर और उनमें मासूम बच्चों में, गरीब बच्चों में घुल मिल जाने की वजह से उसकी आंखों से, मुसन्निफा की आंखों से आंसू निकल पड़े। आप बोलिए बेटा। सोवेटो से निकलते वक्त परवीन के बेटे फराज ने वहां के बच्चों से बातें शुरू की तो उसके इर्द गिर्द बच्चों का एक झुंड जमा हो गया। वो उनके साथ पुराने दोस्तों की तरह बात कर रहा था। परवीन की आंखें फराज की नरमी, रहमदिली और इंसानियत को देखकर नम हो गई। चूंकि फराज उन बच्चों का हीरो बन गया था, इसलिए परवीन के लबों पर मुस्कुराहट थी और उसकी खूबियां देखकर खुशी के मारे उसकी पलकें भीगी हुई थी। इसीलिए बच्चों हो, जितने आपके वालिदैन को आपसे उम्मीदें वाबिस्ता है, उससे ज्यादा आप पढ़िए बच्चों हो, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और आप ये बात महसूस करेंगे कि पढ़ाई की वजह से आपके वालिदैन कितने आपसे खुश होंगे। आप घर पर भी इस बात को महसूस कीजिए। आप जिस वक्त मुताला करेंगे, आप देखिए आपके वालिदैन के चेहरे खुशी से कैसे आपको रोशन नजर आएंगे, मुनव्वर नजर आएंगे। और जिस किसी दिन आपने वक्त अपना पूरा दिन अगर जाये कर दिया बाहर ही घूमने फिरने में, तो आप देखिए आपके वालिदैन के चेहरे आपको मलूल नजर आएंगे। तो प्यारे बच्चों हो, न सिर्फ आप अपने खुद के लिए बल्कि अपने वालिदैन की खुशी के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कीजिए, मेहनत मशक्कत कीजिए और एक अजीम इंसान बनने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।